Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So in today's class, we will be going to start our next topic, that is pressure and winds, and we will study the core concepts of the pressure and winds. But before that, a subpart of the temperature has been left out. It is not that much important for the practical use. क्यों है बता देता हूँ. आइसोथर्म्स, वी आर गोइंग टू स्टडी आइसोथर्म्स. थोड़ा सा 5-10 मिनट का टॉपिक होगा, बट इट इज़ रेलेवेंट विद रेस्पेक्ट टू आवर प्रीलिम्स. तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. हेडिंग डाल लीजिए आइसोथर्म्स. 3-4 पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ. एक डायग्राम है, वो बता देता हूँ. इतना ही हमारे लिए सफिशेंट है. वाई दे आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकल यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर आइसोथर्म्स? They are the line joining the equal temperatures. But practical use में क्यों नहीं है? Because prima facie it is looking very relevant that all the equal temperature they will be joined by a line. But the twist is that, and most of the coaching centers वो ये भूल जाते हैं बताना, या उनको पता नहीं होता. These isotherms, in reality, if there is a hill station, the temperature of that hill station is 20 degrees Celsius. Now the isotherm which is passing through that hill station, वो क्या होगा? The hill station, एक हमारे पास पॉइंट है, उसी हिल स्टेशन का टेम्परेचर हम ले आएंगे. कहाँ ले आएंगे? द सी लेवल पे. सो जैसे 20 है तो 20 से कितना कम लाएंगे? जो हमारे पास सी लेवल टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट, उसमें से माइनस कर देंगे. सो सच काइंड ऑफ टेम्परेचर लाइंस विल बी जॉइन टुगेदर एंड देन इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्म्स. वापस सुन लीजिए. एक हमारे पास प्लाटू है, एक हमारे पास माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट मान लीजिए. एक हमारे पास प्लाटू है, एक हमारे पास गोवा है, बीच इज सी लेवल है. बीच पे हमारे पास टेम्परेचर है 35, एवरेस्ट पे है हमारे पास मान लीजिए 0, और प्लाटू पे है हमारे पास कोई बीच का टेम्परेचर मान लीजिए 25 है. बीच का जो टेम्परेचर है वो तो सी लेवल पे ही है. द नेक्स्ट टू टेम्परेचर्स विच आर एट अ पर्टिकुलर हाइट, प्लाटू की मान लीजिए 500 मीटर अबाउ द सी लेवल, एंड माउंटेन की मान लीजिए 2, 3, 4, 8 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल. तो ये 8 किलोमीटर जो ऊपर टेम्परेचर है उसको हम सी लेवल पे लाएंगे. क्यों? कितना बनता है? जो प्लाटू 500 मीटर है सी लेवल से, उसको हम 500 मीटर नीचे ले जाएंगे कि कितना बनता है. एंड देन इफ दीज 3 टेम्परेचर्स आर इक्वल, देन वी विल जॉइन द आइसोथर्म. सो दिस इज नथिंग कॉल्ड बट आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स आर द लाइन जॉइनिंग द equal temperatures when all the temperatures are brought to the sea level. There is some pattern that have been recognized in the northern hemisphere as well as southern hemisphere. In the northern hemisphere, we will have the irregular pattern of isotherms, very closely spaced as well as very erratic. In the southern hemisphere, we have a more regular pattern of isotherms, widely spaced and very much less erratic. क्यों हो रहा है ये? Because southern hemisphere doesn't have the dominance of sea and land. There is not much variation as the land is present in a very scarce manner. Wherever in the comparative way, if we see the northern hemisphere, there is a dominance of land, है ना. We have here Americas, we have Africa, आधा अफ्रीका ऊपर आता है, we have whole of the Eurasian. So hence we have the dominance of land mass. और land mass पे I have told you maritime effect, continentality effect. So because of these things, the temperature, the rate of change of temperature is great or large in the northern hemisphere if we compare it to the southern hemisphere. This is one of the observation. तो 2 observation देख लिया हमने. The pattern of the isotherms, northern hemisphere irregular, erratic, and rate of change of temperature is more closely spaced. southern में इसका पूरा उल्टा. ये एक चीज़ थी. नेक्स्ट चीज़,
दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वी हैव द मौसम ऑफ समर्स. अगर वहाँ समर्स है तो नीचे क्या होगा? ऑफकोर्सली विंटर्स. दिस इज अ लैंड मास एंड सराउंडिंग इट इज द water bodies. This is the land mass. अब I have two ways to explain this concept to you. अगर आपको easy way में जानना है तो वो पहले सुन लीजिए और उसके बाद आपको conceptual clarity की ज़रूरत है ही नहीं, इतना prelims related topic है ये. We have to go always from land to sea. These are number of latitudes. We have to go from land to sea. Here also we have to go from land to sea. These are the isotherms. These are joining equal temperatures when all the temperatures have been brought down to the sea floor. You can see in the summers, if we go from land towards sea or ocean, the isotherm is bending towards equator. So there's a bend equatorwards. क्या बोला मैंने? If we are going from land towards sea, ये land है, we are going towards sea. So in summers the isotherm is bending towards equator. हम देख पा रहे हैं. Now southern hemisphere winters होंगी, ऊपर summers है तो. When we go from land towards ocean, the isotherm is bending polewards. So these are the two patterns that we have to keep in mind, क्योंकि ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है आसानी से. जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना होता क्या है वो भी सुन लीजिए. मान लीजिए दिस इज द इक्वेटर टेम्परेचर लाइन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बता देता हूँ मैं, आप सदर्न का खुद से जान लेना. मान लेते हैं सबका टेम्परेचर सेम है, ऑल हैव द सेम टेम्परेचर है. एक लैटिट्यूड में सबका टेम्परेचर, सी का भी ओशन का भी टेम्परेचर सेम है और लैंड का भी टेम्परेचर सेम है ऑन अ सिंगल लैटिट्यूड. और क्या चल रहा है हमारे पास? समर्स चल रहा है. तो देखिए, इफ हेयर आई एम हैविंग 25 डिग्री सेल्सियस, सो हेयर ऑल्सो आई एम हैविंग 25 डिग्री सेल्सियस. लैंड पे 25 डिग्री सेल्सियस आइडियली लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ होना चाहिए. बट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास द कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, द एग्रेवेटिंग इफेक्ट. जो भी सिचुएशन है उसको एग्रेवेट कर देगा. अगर समर्स है तो समर्स में ये चीज़ और एग्रेवेट कर देगा. तो मतलब अगर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो यहाँ तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा. भाई अगर यहाँ आइडियली 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, बट वो एग्रेवेट करता है, जितना भी टेम्परेचर है उसे एग्रेवेट कर दिया, तो यहाँ कितना है? अब 25 से ऊपर हो जाएगा. तो 25 से नीचे कहाँ मिलेगा? इक्वेटर वर्ड्स मिलेगा या पोल वर्ड्स मिलेगा? 25 से नीचे ऑफकोर्सली यहाँ मिलेगा हमको 25 से नीचे. इसको बढ़ा लेना, ऐसे बढ़ा लेना. आप समझ पा रहे हैं बात क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस इज अ सिंगल लैटिट्यूड एंड आइडियली वी हैव 3 टेम्परेचर of 25 degree Celsius on that latitude. But we have studied continentality effect, the aggravating effect. 25 डिग्री है तो 25 डिग्री को 35 डिग्री बना देगा. सो यहाँ 25 डिग्री, यहाँ होना चाहिए था 25 डिग्री, यहाँ है 25 डिग्री. 25 डिग्री इधर भी है बट कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट लग गया तो यहाँ हो गया 35 डिग्री. अब अगर हमें कम टेम्परेचर चाहिए, इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन द लेस टेम्परेचर, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर और पोल, ऑफकोर्सली पोल वर्ड्स. यहाँ 35 है तो हमें यहाँ कहीं 25 मिलेगा. अब ज्वाइन कर लेते हैं.
क्या यहाँ बताया था, वही ऑब्जर्वेशन आ रही है इधर. इफ़ वी आर मूविंग इन द समर्स, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, द आइसोथर्म विल बेंड इक्वेटर वर्ड्स. ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर वर्ड्स. अंडरस्टूड. अब यही चीज़ हम विंटर्स में लगाएंगे, और विंटर्स में भी क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी एग्रवेटिंग है. इसका मतलब अगर -10 है तो क्या पहुंचा देगा, -20 पहुंचा देगा. और अगर -20 पहुंचा देगा तो हमको तो -10 चाहिए. तो गर्मी, थोड़ी सी गर्मी कहाँ मिलेगी, इक्वेटर वर्ड्स है पोल वर्ड्स, थोड़ी इक्वेटर वर्ड्स मिलेगी. तो ऐसे ही आप यहाँ बनाना, और आपको मैंने लास्ट रिजल्ट ये बता दिया. तो ये था फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आप भूल गए हो तो एग्जाम में आप ऐसे निकाल सकते हो. अगर नहीं याद आ रहा कोई टेंशन नहीं है, ऐसे याद करो, वी आर ऑलवेज प्रेजेंट एट लैंड. ज़्यादातर हम कहाँ रहते हैं, लैंड पे. तो ऑलवेज गो फ्रॉम लैंड टुवर्ड सी. समर्स, समर्स सुनते ही क्या याद आता है, पोल या इक्वेटर, ऑफकोर्सली इक्वेटर. सो इन समर्स ऑलवेज आइसोथर्म विल बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर. विंटर में चले जाओ, विंटर को सुनते ही क्या याद आता है, इक्वेटर और पोल, तो विंटर पोल. सो ऑलवेज लैंड फ्रॉम सी. तो इफ वी गो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इन द विंटर्स, द आइसोथर्म विल बेंड पोलवर्ड्स. तो यही याद करना है. एंड दिस वाज आवर आइसोथर्म्स. Now starting our next topic, that is pressure and winds. प्रेशर हमको पता ही है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे हम बैरोमीटर पे नापते हैं. डेट इज़ अवर नॉर्मल प्रेशर. सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, यस, एट द सी लेवल. होता क्या है प्रेशर, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे, वी आर स्टैंडिंग हेयर, देयर इज अ मास ऑफ एयर, and now we are standing at yet another place and there is a mass of air only this much. So प्रेशर कौन ज़्यादा अप्लाई कर रही है, ऑफकोर्सली दिस मास ऑफ एयर. हमको दिख रहा है भाई इतनी बड़ी अमाउंट है, यहाँ इतनी सी अमाउंट है. व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन आवर हेड. अगर ऊपर प्रेशर, अगर ऊपर एटमॉस्फेयर ही कम है तो ज़्यादा हम पे अप्लाई नहीं करेगा. एटमॉस्फेयर कहाँ कम है, जितना हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चले जाएंगे, हम ट्रोपोस्फेयर में चले जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाएंगे, मीजोस्फेयर में चले जाएंगे, तो उतना ही एटमॉस्फेयर ऊपर कम बचा. सो हेंस देयर इज अ लेस प्रेशर अप्लाइड ऑन आवर हेड, एंड दस वी हैव द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द हिल स्टेशंस. समझ आई बात. अब सी लेवल पे आ गए, एकदम धरातल पे आ गए, जहाँ सी और लैंड का संगम हो रहा है. ठीक है. सो उस जगह मैक्सिमम प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ओवरहेड. सो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ लगता है, एट सी लेवल. जो नॉर्मल एयर प्रेशर है वो आपको पता ही है, 1013 पॉइंट ऐसे करके कुछ है मिलीबार में. तो आप देख लेना. यहाँ वी आर गोइंग टू स्टडी द कोर कंसेप्ट्स. सो देखिए, दैट 2 to 3 थिंग्स. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ओनली वन डायग्राम, और यही आप हर जगह से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा आपको लिखना कैसे है. दिस कैन बी अ मेंस क्वेश्चन ऑल्सो. ट्वेंटी 25 to 35, 60 to 66 डिग्री नॉर्थ, और ये सारे साउथ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रेशर एंड द एसोसिएटेड winds. Winds are of different types, like the primary, the secondary, as well as local winds. We will go into depth of the winds in our next lecture. This is the very base lecture, ground lecture of the understanding of pressure. There are some pressure belts जो कि हम इसी क्लास में पढ़ेंगे या अगली क्लास में पढ़ेंगे. These pressure belts
विल मूव विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अगर सन नॉर्थ में जाएगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो थोड़ी सी प्रेशर बेल्ट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। व्हेन द सन गोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, व्हाट इज द maximum tilt? It is tropic of Capricorn. So all the pressure belts will move towards south. तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है with the apparent movement of the sun. This is the first part. At equator, we have studied that between 0 to 10 degree Celsius, 10 degree north and south, 0 to 10 degree north and 0 to 10 degree south, we have the equatorial zone, and it has the maximum temperature throughout the year. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा? ऑफकोर्सली आपने साइंस अगर ली होगी तो आपको पता है, इफ़ वी हैव मोर टेम्परेचर द प्रेशर विल बी लो. सो थ्रू आउट द ईयर वी हैव द हाई टेम्परेचर हेयर, thus we will have the equatorial low pressure belt. This equatorial low pressure belt has been created by the heating of the sun. ठीक है, so it is thermally created. There are three such pressure belts which are thermally created. The first is the equatorial low due to the greater annual range of temperature in the equatorial regions. The second is, and the third is the North Pole and the South Pole. These belts are also thermally created because throughout the year the temperatures are sub-zero and hence we have temperature अगर कम है तो pressure ज़्यादा है, तो we have polar high, here also polar high. So these are the thermally created pressure belts. अब हमारी रामकथा स्टार्ट होगी. देखिए, there is something known as ITCZ. What is ITCZ? ITCZ is an imaginary line where the winds, कौन सी? The trade winds from both the hemisphere will meet. तो इक्वेटर तो एक थ्योरेटिकल है, द प्रैक्टिकल थिंग इज द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सो वो भी इधर ही रहता है इक्वेटर के आसपास, बट एज आई हैव टोल्ड यू द प्रेशर बेल्ट्स विल शिफ्ट विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड सो विल द ITCZ. तो मान लीजिए अभी के लिए ITCZ ये इक्वेटर ही है. हेयर वी हैव द कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर, so there is a equatorial low, the low pressure has been created. अगर एक जगह लो प्रेशर क्रिएट होता है, so all the winds will try to fill that gap. तो अगर नीचे से all the winds are trying to fill this low pressure, तो अगर नीचे से कन्वर्ज हो रही है तो ऊपर जाके और डाइवर्ज होंगी. so नीचे से आ रही है, ऊपर उठ रही है, ascending limbs and diverging. so ये जो नीचे से साइड से आ रही है तो वो क्या बोले जाते हैं? yes, they are known as trade winds. The nomenclature of winds is assigned in such a way that wherever there is origin of wind, उसी के डायरेक्शन के हिसाब से हम विंड की डायरेक्शन रखेंगे. तो अगर ये विंड की डायरेक्शन है तो इसकी ओरिजिन है ये, तो इसके हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से ओरिजिन ये है. अगर ओरिजिन ये है तो ये कहाँ से निकल रही है? इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है, और ये ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट है. तो ये साउथ और नॉर्थ हटा दो, अभी के लिए बस ईस्टर्ली सोचिए. ठीक है, तो विंड्स में ईस्टर्ली होता है, तो ये ईस्टर्लीज है. और कैसी है? ट्रॉपिकल. दीज आर फ्लोइंग इन द ट्रॉपिकल, सो दीज आर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज और ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड्स. सो दीज आर ट्रेड विंड्स. यहाँ से आ रही है और यहाँ से ऊपर उठ रही है, वापस जाके यहाँ बैठ रही है. कहाँ बैठ रही है भाई? इधर 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 25 to 35 डिग्री साउथ. क्यों बैठ रही है? पीछे जाना और देखना, एक लाइन हमने लिखी है कि ऑल्दो इन द टेम्परेचर वेरिएशन वी हैव रिटन दैट ऑल्दो वी विल फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर एट द दिस 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड एट ट्रॉपिक्स. एक एनोमली थी, है ना? हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट ड्यू टू क्लाउड कवर एंड कंटिन्यूस रेन
वहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड मैक्सिमम वी विल फाइंड एट द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स, जो हमें सारे डेजर्ट्स मिलते हैं इन द ट्रॉपिकल एरिया। सो वहाँ हमने लिखाया था कि ऑल दो इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, वन ऑफ द हाइएस्ट टेम्परेचर्स, बट इट इज़ अ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर कैसे है भाई? अभी मैंने बताया था प्रेशर और टेम्परेचर रिवर्स होते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास टेम्परेचर भी हाई है और यहाँ प्रेशर भी हाई है। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है। सो ये एनोमली कैसी है? देखिए, यहाँ से जो विंड आ रही है लो प्रेशर में आई, इक्वेटोरियल लो में ऊपर गई, असेंड हुई, एंड देन दे विल बी डाइवर्टेड बैक। नाउ दे आर फ्लोइंग इन द अपर एटमोसफियर, और अपर एटमोसफियर में नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब ग्रेजुअली दीज एयर, द अपर एयर सर्कुलेशन विल कूल डाउन, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड दे आर फोर्स्ड to descend at 25 to 35 degree north and 25 to 35 degree south. Hence, we will have the subtropical high pressure belts. Now these winds जब ये डिसेंड होंगे, so they will get dried up. क्यों? नॉर्मल लैप्स रेट वापस आएगा, तो they will get dried up. So hence we have the formation of deserts. तो ये एक और मैंने आपको रीज़न दे दिया, formation of deserts in the tropics. क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक होगा कि जहाँ भी हमारे पास डेजर्ट्स हैं इन द ट्रॉपिक्स, द विंड विल बी गोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी। ये पहला पॉइंट है। द सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट, ये हम बाद में देखेंगे। एंड द थर्ड इज दिस थिंग, वी हैव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन दिस जोन 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 25 to 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। सो दीज आर थ्री थिंग्स वेयर it will suffice for the formation of a desert। और कहाँ मिलते हैं हमको? in between tropics, the western margin of the continents। मैंने आपको बताए थे बहुत सारे, यहाँ एटाकामा बताया था मैंने साउथ अमेरिका में, हेयर वी हैव सहारा एंड नीचे कालाहारी डेजर्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट ओशन डेजर्ट है, गिब्सन है, बहुत सारे हैं उधर। तो बैक टू द टॉपिक, ट्रेड विंड्स आई, यहाँ कन्वर्ज हुई RTC पे, ऊपर गई, वापस जैसे ही जो अपर एयर सर्कुलेशन होगा वहाँ क्या होगा? यस, दे विल डिसेंड डाउन ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द एयर करंट्स। जैसे कूल होंगे तो यहाँ ऑल दो टेम्परेचर इज वेरी हाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन, बट वी हैव द क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट। So now this is dynamically created high pressure belts. So we have 4 such dynamically created high pressure belts. Which are these? Subtropical high pressure belt, ये यहाँ भी बनेगी और एक साउथ में भी बनेगी। तो यहाँ भी subtropical high pressure belt, एंड और है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और एक यहाँ बनेगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। So these are dynamically created pressure belts, and the other 3 are the thermally created pressure belts. तो कितनी होगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7 में से 4 डायनेमिकली, 3 थर्मली। इधर आ गई और यहाँ नीचे चली गई। अब जब नीचे जाएगी ग्राउंड में तो वापस हाई प्रेशर है तो बाहर जाएंगी। अब बाहर जाके एक तो ट्रेड विंड्स आ गई और दूसरी कौन सी जाएंगी? वेस्टर्लीज। So these are known as the zone of westerlies. अच्छा, इक्वेटोरियल रीजन इज ऑल्सो नोन एज द जोन ऑफ डोल ड्रम्स। ठीक है, 25 to 35 डिग्री पे नीचे जाती है तो हाई प्रेशर जोन होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड जोन। तो देख लेना जाके, 25 to 35 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसके साथ एक स्टोरी अटैच है, जब भी पहले के सेलर्स इधर उधर जाते थे, हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, सो दे यूज टू गो बाय द शिप्स, जो भी हमारी पहले की एंशियंट बोट्स होती थी उसको, और उस पर घोड़े भी रखते थे। तो क्या होता था, जैसे ही यहाँ पहुँचते थे, ड्यू टू द वेरी काम कंडीशंस ऑफ द विंड्स, वाई? क्योंकि हम वहाँ हाई प्रेशर जोन है। अगर हाई प्रेशर जोन है तो सारी विंड्स तो नीचे जा रही है, तो मैक्सिमम प्रेशर होता था ऑन द बोट, जिससे बोट आगे चल नहीं पाती थी। सो उसके लिए हॉर्स वहाँ थोड़े से फेंक दिए जाते थे। अंडरस्टूड? तो उनको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाने लगा।
इक्वेटोरियल रीजन को जो जोन ऑफ डोल्ट्रम्स क्यों बोलते हैं? देखिए दोनों विंड्स ऐसे आके मिल रही है, अगर एक ट्रेडर यहाँ फंसा हुआ है वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा, बट ड्यू टू द सेलिंग ऑफ द विंड वापस वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा वापस यहाँ पहुँच जाएगा। सो हैंस इट इज़ नोन एज जोन ऑफ डोल्ट्रम्स। तो ऐसे याद कर लेना, 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इट इज़ जोन ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड्स। अब देखिए ये पोलर हाई है, अब पोलर हाई है तो मैंने क्या बताया, अगर हाई है तो नीचे आके इधर उधर जाएंगी, तो भाई इधर आ रही है नीचे विंड्स एंड दीज आर नोन एज पोलर ईस्टर्लीज। देखिए कहाँ से आ रही है, अगर ये एक ले रहा हूँ मैं, ये पोलर ईस्टर्ली है, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ओरिजिन से हमको नेम करना है, अगर ओरिजिन से नेम करना है तो ये क्या है ईस्टर्ली, और कौन से जोन में बह रही है पोलर, तो पोलर ईस्टर्ली। देखिए ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स ले रहा हूँ मैं, दीज आर ट्रेड विंड्स, कहाँ से बह रही है ओरिजिन, ओरिजिन को क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए पूरा हम अगर यहाँ इंडिया का मैप बना दें, दीज आर ईस्टर्लीज, पर बह कहाँ रही है ट्रॉपिक, सो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज या इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज, जिसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। ये है पोलर ईस्टर्लीज। ये देखिए वेस्टर्लीज बनाई है मैंने, वेस्टर्लीज देखते हैं, ये रही हमारे पास वेस्टर्लीज, दिस इज द ओरिजिन, कहाँ ये वेस्ट टू ईस्ट बह रही है तो वेस्टर्लीज, तो ओरिजिन से देखते हैं हमेशा विंड को। तो भाई हमारे पास वेस्टर्लीज आ गई थी, ऊपर से हमारे पास पोलर ईस्टर्लीज आ रही है, एंड नाउ देयर इज अ कन्वर्जेंस एट द ग्राउंड, एंड सेकेंड ऑफ ऑल दिस इज द अपोजिट विंड सिस्टम। पोलर ईस्टर्लीज से क्या आएंगी, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स। अभी बताया मैंने हाई टेम्परेचर है पर हाई प्रेशर भी है, तो यहाँ से कौन सी जाएंगी, वार्म विंड्स। अगर वार्म और कोल्ड का संगम होगा, सो दिस एरिया इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ और जोन ऑफ फ्रंट्स, और फ्रंट्स मतलब द टेम्परेट साइक्लोन्स विच वी विल बी स्टडिंग इन द फ्यूचर लेक्चर्स और कब। सो दिस 60 to 66 डिग्री सेल्सियस आर द जोन ऑफ फ्रंट्स टेम्परेट साइक्लोन्स। तो ये जो मिक्सचर है, कन्वर्जेंस है ऑफ द अपोजिट विंड सिस्टम, इट विल फोर्स द विंड टू राइज अप, और जब ये यहाँ से दोनों मिलके ऊपर राइज अप होंगी तो वापस कहाँ जाएंगी, अपने यहाँ जाएंगी, फिर ऊपर आएंगी, फिर यहाँ जाएंगी, फिर ऊपर आएंगी, फिर यहाँ जाएंगी। यहाँ देख लीजिए इक्वेटोरियल रीजन में ट्रेड विंड्स में, ट्रेड विंड्स दोनों इधर आई, इससे बताते हैं ना, ट्रेड विंड्स दोनों ऐसे आएंगी, फिर अपना ऊपर चले जाएंगी, यहाँ जाएंगी 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पे बैठ जाएंगी, क्रिएटिंग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, एंड देन वापस दे विल फ्लो टुवर्ड्स इक्वेटर वाया ट्रेड विंड्स। तो होप सो आपको समझ आ गया हो। वी हैव डायनामिकली क्रिएटेड कौन कौन से हैं, हमारे पास 4 हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स 2 each. Thermally created we have 3, the equatorial low and the polar high. So आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। In the next class we will be starting our winds topic dissection. तो उसको अच्छे से देखेंगे, the 3 kinds of winds, primary, secondary and the local winds. तब तक के लिए if your concepts are getting cleared, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद।